Morning students. In previous lecture we discussed about food chain, food web and biological magnification, and today we discuss about ozone layer. Ozone layer is made up of 3 oxygen atom and its chemical formula is O3, and it is present in upper atmosphere. That atmosphere is known as stratosphere, and it is deadly poisonous layer, and we are very lucky it is present in upper atmosphere, that is known as stratosphere. Ozone layer protect us UV radiation, protect us from UV radiation, that UV radiation that coming from sun, and that ozone layer protect us UV radiation, and which is very harmful for plants and animals. And UV radiation cause skin cancer and eyes cataract means motiyabind, and it cause many diseases in plants and animals. So UV radiations are very harmful, and ozone layer are protect us from UV radiations. And now question arise, how ozone layer is formed? Ozone layer is formed with the help of UV radiations. Like this, its formula is O3, and you know about that in our atmosphere oxygen is present in the form of O2 molecule, and O2 molecule is broken up with the help of UV radiation in oxygen atoms, 2 oxygen atoms, and this oxygen atom combine with another molecule of O2 combine with oxygen, and with the help of UV radiation they form ozone layer. Is it clear beta? Again I repeat, ozone layer which is made up of 3 oxygen atoms, and it is present in upper atmosphere, that is known as stratosphere. We are very lucky that is present in we are very lucky because in ozone layer is present in upper atmosphere, and because it is very deadly poisonous layer. Is it clear beta? Now question arise, how this layer is formed? Its formula is O3, and in our atmosphere oxygen present in the form of O2. O2 molecule are split into 2 oxygen atom with the help of UV radiation, and this oxygen atom combine with O2 molecule and it form O3. In this way ozone layer is formed. Is it clear beta? Now this layer now decreases day by day. Its thickness, जो इसकी thickness है, its thickness is decreases day by day due to some harmful chemicals. These chemicals are known as chlorofluorocarbons. Chlorofluorocarbons are non-biodegradable and they persist long time in our environment, and these chlorofluorocarbons are light in weight and they move up in the air and they react with ozone layer. ओजोन लेयर के साथ ये रिएक्ट करते हैं, ओजोन लेयर के साथ रिएक्ट करते हैं, एंड दे डिक्रीज द थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर. इज इट क्लियर बेटा? सो chlorofluorocarbons are very harmful and these are non-biodegradable. Chlorine react with this layer and degrade the ozone layer into the oxygen atoms, like Cl when react with oxygen they form Cl2O plus oxygen atom. इज इट क्लियर बेटा? O2 की फॉर्मेशन कर देते हैं, दे फॉर्म विद एजोन, नॉट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल.
Cl2 chlorine react with ozone layer, then they form Cl2O plus O2, and they decrease the thickness of this layer. Is it clear beta? Its presence is very important for the survival of plants and animals on earth because it protects from UV radiation. So it's duty of our country and all the peoples to decrease the use of chlorofluorocarbons. So in 1987, UNEP, United Nations Environment Programs agreement की हुई डिक्रीज द यूज़ ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। सभी कंट्रीज़ ने एक एग्रीमेंट किया कि हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के यूज़ को डिक्रीज़ कर देंगे, उसके यूज़ को कम कर देंगे। जो रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, एयर कंडीशनर्स होते हैं, उसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स यूज़ होते हैं। तो आज मार्केट में हमें ऐसे रेफ्रिजरेटर्स मिलते हैं जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स फ्री होते हैं। इज़ इट क्लियर बेटा? सो सभी कंट्रीज़ ने एक एग्रीमेंट किया कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के यूज़ को डिक्रीज़ कर दिया जाए, जिससे हम अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम द यूवी रेडिएशंस। इज़ इट क्लियर बेटा? फर्स्टली आई टेल यू अबाउट वेस्ट। बहुत सी चीज़ें जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, हम वर्थलेसली थ्रो कर देते हैं इन द इन्वायरमेंट, दैट इज़ नोन एज वेस्ट। और उस वेस्ट को हमने कैसे मैनेज करना है? फर्स्टली आई टेल यू अबाउट मीनिंग ऑफ बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। फर्स्ट, biodegradable substances are those substances which are decomposed by microorganisms या by any biological method. Those substances are known as biodegradable substances. जैसे आपने डाइजेशन चैप्टर में पढ़ा कि हमारा कॉम्प्लेक्स फूड कन्वर्ट इनटू सिंपलर फॉर्म्स with the help of enzymes, with the help of catalyst. In this way, some substances are decomposed by the microorganisms. Those substances are known as biodegradable substances. Is it clear beta? Again I tell you about बेटा, जो भी हम फूड खाना खाते हैं, आपने डाइजेशन चैप्टर में पढ़ा है, लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर में, कॉम्प्लेक्स फूड convert into simpler foods. Breakdown of complex food into simpler foods with the help of enzymes. In this way, some substances are decomposed by biological method and by microorganisms are known as biodegradable substances. Example, kitchen waste, plant waste, vegetable waste, these are known as biodegradable substances. Are those substances which are decomposed by microorganisms and other biological method. Example,
plant waste, kitchen waste, animal waste, etc. Biological substances are those substances which are decomposed by microorganism and other biological methods. Is it clear beta? Non biodegradable इसका opposite are those substances which are not decomposed, जो हमारे इन्वायरमेंट में डिकम्पोज नहीं होते, एंड दे कैन परसिस्ट लॉन्ग टाइम इन आवर इन्वायरमेंट, दैट आर नोन एज नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस. क्लियर बेटा? नॉन बायोडिग्रेडेबल are those substances which are not, जो decomposed नहीं होते, which are not decomposed in our environment, they can persist long time in our environment, that are known as non biodegradable substances. Example like plastic, polythene, ये decompose नहीं होते, are not decomposed by microorganisms and they can persist long time in our environment. Example, plastic, polythene. Is it clear beta? They are decomposed by microorganism. These are not decomposed by microorganisms. Is it clear beta? Next one I tell you about how we can manage our garbage. हम अपनी गार्बेज को कैसे मैनेज कर सकते हैं. अलग अलग तरीके हैं कि हम अपनी गार्बेज को मैनेज करें, कि कैसे हम उनका डीकम्पोज करें, कैसे हम उनको डीकम्पोज करें या डिस्पोज करें. फर्स्ट मेथड है जैसे लैंड फिलिंग. हम क्या करें, पिट बनाकर, खड्डा बनाकर उसके अंदर फिल कर दें और फिर उसको बंद कर दें, जिससे वो मैन्योर में भी कन्वर्ट हो सकती है. बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस हो तब. यदि नॉन बायोडिग्रेडेबल है तो वो मैन्योर में कन्वर्ट नहीं हो सकती. हम क्या करें, लैंड फिलिंग करें. रीसाइक्लिंग, हमें ऐसे जैसे बहुत से स्कूल्स हैं, बहुत सारे पब्लिक प्लेसेस हैं, वहाँ पर क्या किया जाता है कि अलग अलग डस्टबिन्स होते हैं. सेपरेट डस्टबिन फॉर बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस एंड सेपरेट फॉर नॉन बायोडिग्रेडेबल. और नॉन बायोडिग्रेडेबल में भी दो टाइप के होते हैं. दो सब्सटेंसेस आर यूज्ड फॉर अगेन रीसाइक्लिंग के लिए यूज़ हो जाएं, और जो रीसाइक्लिंग ना हो सकते हों उनके लिए सेपरेट डस्टबिन को हम यूज़ कर सकते हैं. अगेन आई टेल यू अबाउट हाउ वी कैन मैनेज आवर गार्बेज. हम अपनी गार्बेज को कैसे मैनेज कर सकते हैं. हम अपनी गार्बेज को मैनेज करने के लिए हम बेटर वे से उसे डिकम्पोज कर सकते हैं. जैसे अलग अलग मेथड हैं. इंसिनरेशन, जला सकते हैं कुछ चीज़ों को. हम लैंड फिलिंग कर सकते हैं, लैंड के अंदर फिल कर सकते हैं. कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम मैन्योर में कन्वर्ट कर सकते हैं, कंपोस्टिंग कर सकते हैं. कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम रीसाइक्लिंग के लिए भेज सकते हैं, जैसे प्लास्टिक है, पेपर है, ये रीसाइक्लिंग हो जाते हैं.
और कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिनको हम रीयूज़ कर सकते हैं, जैसे बॉटल्स हैं, जैम बॉटल्स हैं, उनको हम क्लीन करके दोबारा किचन थिंग्स को स्टोर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं। इन दिस वे वी मैनेज अवर गार्बेज, हम अपनी गार्बेज को मैनेज कर सकते हैं। अलग अलग सेपरेट डस्टबिन यूज़ कर सकते हैं कि जो सब्सटेंस बायोडिग्रेडेबल है उसको अलग से कलेक्ट किया जाए, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है उसको अलग से कलेक्ट किया जाए, क्योंकि जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस होते हैं उनको हम पिट के अंदर फिल करके, एक खड्डे के अंदर फिल करके हम उसको मैन्योर में कन्वर्ट कर सकते हैं, और यदि वो मैन्योर बन जाती है तो वो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को भी इंक्रीज़ करने में हेल्प करती है और प्लांट्स की ग्रोथ के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है मैन्योर। इज़ इट क्लियर बेटा? सो इन दिस वे वी यूज़ these methods to manage our garbage. One is recycling. Recycling क्या है? Like plastic, paper, they are goes again go to the factories and they are again recycled and again they form a new shape and new things and then we use. In this way material, raw material is प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एनवायरनमेंट। रॉ मटेरियल की बचत हो सकती है, पर रीसाइकलिंग से बहुत सारी एनर्जी वेस्ट होती है, इसलिए रीसाइकलिंग से बेटर मेथड है कि हम उसे क्या कर लें, रीयूज़ कर लें। इज़ इट क्लियर बेटा? एक आपकी बुक में एक्टिविटी भी है, जैसे रेलवे स्टेशंस हैं, बस स्टैंड्स हैं, वहाँ पे जो टी मिलती है हमें, जो चाय बेचने वाले होते हैं, वो सबसे पहले हमें टी किस में देते थे? एक प्लास्टिक पेपर में, प्लास्टिक कप में, सॉरी प्लास्टिक पेपर नहीं, प्लास्टिक कप में, प्लास्टिक कप में प्रोवाइड करते थे। पर हाँ, प्लास्टिक क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल, वो हमारे इन्वायरमेंट में डिकम्पोज नहीं हो सकता, और वो फिर किस में कन्वर्ट हो गया? कुल्हड़। कुल्हड़ क्या होते हैं? जो मिट्टी के बर्तन बने होते हैं, पर उससे सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज़ हो गई। क्या करते थे? बहुत से पैसेंजर्स होते थे, चाय पी और वो कुल्हड़ में ही फेंक दिया, वो डिकम्पोज, जिससे सॉइल की जो अपर सॉइल की फर्टिलिटी, अपर सॉइल है, वो डिकम्पोज होती चली गई, ख़त्म होती चली गई। अब जब हम देखते हैं रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पे जो हमें टी कप मिलते हैं, वो किसके होते हैं? थर्माकोल्स के या पेपर कप होते हैं, ताकि पेपर क्या है? बायोडिग्रेडेबल, वो आसानी से हमारे एटमॉस्फेयर में डिकम्पोज हो जाता है। इसलिए हम अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके भी अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, यदि हम अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर लें। जैसे हम स्टेयर से हमने अपस्टेयर्स जाना है, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पे जाना है, स्टेयर्स को यूज़ करो इंस्टेड ऑफ लिफ्ट को यूज़ करने की बजाय हमें स्टेयर से जाना चाहिए, जिससे हम नेचुरल चीज़ों को, अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब हमने 3-4 लोग हैं, हम अलग अलग से कार पे जा रहे हैं, कारपोल कर लें कि सभी एक ही कार में हम चले जाएं एक ही प्लेस पे। इस तरह से हम अपने इन्वायरमेंट को पल्यूट होने से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इज़ इट क्लियर बेटा? थैंक्स फॉर वॉचिंग। इन नेक्स्ट टाइम वी डिस्कस अबाउट हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, कि कैसे ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं।